Hello everyone, welcome to economics class. Today we will discuss about the organization of data. This is second part of this chapter. Dear students, in the previous video we discussed about what is organization, what is classification and how data is classified on the basis of different aspects. Organization refers to an arrangement of data in such a manner so that it can be further analyzed and the interpretation, that is the conclusion, can be drawn. Now we will discuss about some uh, concepts. These are very important for further uh, study of this very chapter. This is about the variable. First, we will discuss about variable and the attributes. Dear students, variable refers to a characteristics or a phenomena which is capable of being measured and changes its value over time. जैसे आपने 11th जैसे आप अभी तक अपने मैथ्स में करते आए हो, अलजेब्रा में हम पढ़ते थे कि x और y दो वेरिएबल्स होते हैं और उनमें कुछ रिलेशन होता है. जैसे आपने पढ़ा है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2 और x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 4. इस तरह से डेफिनेट रिलेशन आते हैं. और जब हम x और y को अलग अलग वैल्यूज़ देते हैं या x को अलग वैल्यू देते हैं तो y की वैल्यू डिफरेंट हो जाती है. वही चीज़ यहाँ वेरिएबल है. वेरिएबल का मतलब होता है कोई ऐसा फीचर, कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो टाइम के साथ साथ चेंज होता है, लेकिन इसके सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है कि हम इसको मेज़र कर सकते हैं. सॉरी. इसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट होता है एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स भी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है या ऐसा फिनोमिना है दैट चेंजेस इट्स वैल्यू ओवर टाइम, बट द डिफरेंस इज दैट दे कैनॉट बी मेजर्ड एट ऑल. जैसे अगर हम एज के बारे में बात करें, हर मिनट के साथ, हर सेकंड के साथ साथ ये चेंज हो रही है, लेकिन हम इसको मेज़र कर सकते हैं. दैट्स वाई इट इज़ अ वेरिएबल. दूसरी तरफ अगर हम बात करें हेयर कलर के, वाइट होते जाते हैं, ग्रे होते जाते हैं, तो ये भी ओवर टाइम चेंज हो रहे हैं, लेकिन हम कभी गिन नहीं पाते कि कितने बाल ग्रे हो गए हैं या पेड़ों से पत्ते गिर रहे हैं तो पेड़ के कितने नए पत्ते आ गए हैं, कितने पत्ते गिर गए हैं. ये सब क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स. सो यहाँ पर अब आपको ध्यान क्या रखना, वेरिएबल रेफर्स टू दोज फीचर्स और दोज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट चेंज देयर वैल्यू over time and can be measured. On the other hand, attributes are the features of phenomena that changes its value, that changes their value but are not capable to be measured. Clear बेटा? हम जब statistics में study करते हैं तो हम study करेंगे variables के बारे में, because statistics study about the numerical facts. Numerical facts means we are capable to measure these changes. So यहाँ पर हमारा main concept क्या रहेगा? That is the variables. Now variables are of two types. One is the discrete variable and second is the continuous variables. Discrete variables are those variables that changes their value in jumps or in complete numbers, that is not fractional values. जैसे आपकी क्लास है, आप 10th के बाद 11th क्लास में आ गए, 11th के बाद 12th क्लास में चले जाओगे. हम कभी भी ये नहीं कह पाएंगे कि आप 10.25 क्लास में हो या 10.5 क्लास में हो. मीन्स द चेंज अकर्स इन कंप्लीट नंबर्स. आपके पास एक टी शर्ट है, आपके पास 2 टी शर्ट्स हैं, एक और ख़रीदी, 3 टी शर्ट्स हो गई, मतलब कंप्लीट नंबर्स. व्हेन द phenomena changes its value in jumps or in complete numbers, these are called discrete variables. On the other hand, continuous variables are those variables that do not change in complete numbers, rather they changes their value in fractions. जैसे अगर हम आपकी हाइट के बारे में बात करें, आपकी हाइट 5 फीट 1 इंच हो सकती है, बढ़ेगी तो 5 फीट 1.5 इंच हो सकती है, 5.2 इंच हो सकती है. ये ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कहाँ पर जा रहे हैं? चेंज करते हैं इन फ्रैक्शन. तो यहाँ से हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टडी किया. व्हाट आर वेरिएबल्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स. फर्स्ट इज व्हाट इज़ वेरिएबल, देन डिस्क्रीट वेरिएबल्स, देन द कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स. गॉट इट बेटा?
Now move to the next topic. This is about the statistical series. Statistical series refers to a systematic arrangement of statistical data. Dear students, keep in your mind, we are discussing about organization of data. Organization itself means an arrangement that facilitates the comparison so that the interpretation can be done. That is, the analysis can be done and results can be drawn. So, what is statistical series? It is an arrangement of data in a systematic way. Now, what's about the raw data? Raw data, that is the data in its original और क्रूड फॉर्म. रॉ का मतलब आप समझते हो, ये होता है जो फिनिश्ड नहीं है, अनफिनिश्ड है ये, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसके बिना हम आगे कुछ कर ही नहीं सकते. जैसे अगर मैं ये बात करूँ कि आपके क्लास के स्टूडेंट्स हैं, मुझे लिस्ट बनवानी है, उस पर आप कह सकते हो कि मुझे आपके सभी पूरी क्लास के बच्चों की ईमेल आईडी चाहिए. अब क्लास में जब स्टूडेंट्स बैठते हैं वो कभी रोल नंबर वाइज तो नहीं बैठते, तो मैंने क्या किया, या आपको एक ब्लैंक पेपर जो है ना वो सर्कुलेट करना शुरू कर दिया. सब बच्चे उस पर अपना अपना रोल नंबर लिख रहे हैं, अपना नेम लिख रहे हैं और साथ में ईमेल आईडी लिखते जा रहे हैं. ये मेरे पास रॉ इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये रॉ इन्फॉर्मेशन मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है. अब इसी रॉ इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर मैं अपना अरेंजमेंट करूँगी, मैं उसको सीक्वेंस में लिखूँगी, रोल नंबर वाइज उसको अरेंज करूँगी. लेकिन रॉ डाटा हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, क्योंकि रॉ डाटा से ही हम उसको अरेंज कर पाएंगे, लेकिन ये उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता. इसको हम कंपेयर नहीं कर पाते, इससे हम रिज़ल्ट कंक्लूड नहीं कर पाते. इसलिए रॉ डाटा कंपैरेटिवली इम्पॉर्टेंट नहीं होता एंड इट नीड्स टू बी अरेंज्ड प्रॉपरली. मतलब हमें इसको ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है. देन व्हाट्स अबाउट द सीरीज़? अरेंजिंग ऑफ रॉ डाटा in different classes according to a given order और sequence is called series. अभी मैंने आपको बताया कि रॉ डाटा को प्रॉपरली अरेंज करना पड़ेगा हमें सीरीज़ में, क्योंकि हम सिर्फ रॉ डाटा या अनफिनिश्ड डाटा से ना तो कंपैरिजन कर सकते हैं, ना हम उससे रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं. सो अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन अ systematical series is known as statistical series. Now we will discuss about the different types of series. Dear students, this raw data can be converted into series by two ways. One is without frequency and second is with frequency. First is without frequency. When we arrange the data without frequency, these are known individual series. But when we arrange the data with the help of the frequency, then these are become frequency series or series with frequencies. Now, before discussing about these series, let's discuss about the frequency. What is frequency? Frequency refers to the number of times a value or an item repeats itself in the series. Clear beta? Number of times an item or a value repeats itself in a series is known as frequency. अगर हम आपकी क्लास के मार्क्स के बारे में बात करें तो 100 स्टूडेंट्स के मैंने एक टेस्ट लिया, उसमें से मैक्सिमम बच्चों के 40 में से 30 मार्क्स आए हैं, बिकॉज 30 इज़ रिपीटिंग इट्ससेल्फ मैक्सिमम टाइम्स. तो 30 मार्क्स जो हैं वो 70 स्टूडेंट्स के 30 मार्क्स आए हैं. तो जो 30 मार्क्स है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी? 70. मतलब कितने बार रिपीट हुआ है वो 30 नंबर? 70 टाइम्स. सो इट विल बिकम फ्रिक्वेंसी. 30 एक आइटम है, एक नंबर है जो मैक्सिमम टाइम्स, और यू कैन से 70 स्टूडेंट्स के नंबर जो है वो 30 आए हैं. तो व्हाट विल बी द फ्रिक्वेंसी ऑफ 30 मार्क्स? दैट इज 70. सो कीप इन योर माइंड व्हाट इज फ्रिक्वेंसी. Frequency refers to an item or a value. This is the number of times an item or value repeats itself in the series. Now, what's about the individual series? Now, individual series refers to, yes beta, individual series refers to the arrangement of raw data individually without frequency. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ. आपके क्लास में
100 स्टूडेंट्स के मार्क्स मैंने कलेक्ट किए, मैंने उसको क्या किया, सीरियल नंबर वाइज मैंने उसको कलेक्ट किया, मैंने एक टेबल बनाई, रोल नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। अब 30 मार्क्स अगर 70 स्टूडेंट्स के आए हैं तो वो 30 मार्क्स बीच बीच में से आते रहेंगे और मैं उसको 70 टाइम्स लिखूँगी। रोल नंबर 1 के 30 आए हैं, फिर रोल नंबर 3 के 30 आए हैं, रोल नंबर 4 के 30 आए हैं, रोल नंबर 7 के 30 आए हैं, तो मैं उसी सीक्वेंस में उसको लिखती चली जाऊँगी without giving any importance to the frequency. These are known individual series. चलिए, ये आपके पास एक एग्जांपल है, जैसे हम इसको अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर अरेंज कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये आपके पास रोल नंबर है, रोल नंबर 5 स्टूडेंट्स के रोल नंबर हैं और ये उनके मार्क्स ऑब्टेन्ड है। अब यहाँ आप देख रहे हो कि 30 मार्क्स आर ऑब्टेन्ड बाय 2 स्टूडेंट्स, 25 मार्क्स आर ऑब्टेन्ड बाय 2 स्टूडेंट्स। हम किसी को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे और हम सीक्वेंस में लिखते चले जा रहे हैं। दिस इज अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। नाउ सेकेंड इज द बाय असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। हम ये लिख सकते थे, जैसे आपकी क्लास में 11th क्लास का जब हम रिज़ल्ट बनाते हैं या जो आपका 12th क्लास का रिज़ल्ट आता है, तो हमें ये देखना होता है कि कितने स्टूडेंट्स के 90 प्लस आए हैं, कितने स्टूडेंट्स के 80 प्लस आए हैं। तो हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना शुरू कर देते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में लेने से हमें क्या फ़ायदा होता है, सबसे ज़्यादा जिस बच्चे के नंबर होते हैं वो सिंपल सी बात है कि टॉप पोजीशन पर होगा, तो वो नंबर 1 पर आ जाता है। इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, यू आर क्वाइट अवेयर अबाउट द असेंडिंग ऑर्डर, सबसे कम वाला पहले आ गया, फिर उसके बाद बढ़ते चले गए। तो हम ऐसे भी इसको अरेंज कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडिविजुअल सीरीज़। Now, what's about the frequency series? Frequency series are of two types. One is the discrete series और frequency array. ध्यान रखना है इसको, discrete series को हम frequency array कहते हैं। क्लियर बेटा? discrete series और frequency arrays, इसमें टेली बार्स भी हम लगाएंगे। देन सेकेंड आ रहा है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको यहाँ पर ध्यान क्या देखना है, ध्यान क्या देना है कि डिस्क्रीट सीरीज़ में क्लास इंटरवल्स नहीं होते, डिस्क्रीट सीरीज़ में क्लास इंटरवल्स नहीं होते। जंप्स में या कंप्लीट नंबर्स में वैल्यूज़ होती है, फ्रैक्शंस में वैल्यूज़ नहीं होती। और फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में टेली बार्स भी हैं बट विद क्लास इंटरवल्स। लेट्स हैव एन एग्जांपल। दिस इज फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, पहले डेफिनेशन करें इसकी जल्दी से, आपको रिवाइज करनी है ये। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू अ टेबल in which observed values of a variable are classified according to their numerical magnitude. ये जो numerical magnitude होता है ये एक्चुअली में फ्रिक्वेंसी ही होती है। numerical magnitude का मतलब कि एक आइटम की वैल्यू कितनी बार आ रही है, तो these are known as a frequency distribution, or you can say frequency distribution refers to a table in which values are observed or variables are classified on the basis of number of times they are repeating itself in the series, that is according to their respective frequency. Now first is the discrete series. A variable is called discrete if the variable can take only some particular values, means हम इसको class interval नहीं दे रहे, एक particular value के बारे में ही हम बात करेंगे। और continuous series क्या होती है, जब हम range के बारे में बात करते हैं। जैसे आपकी क्लास में अगर मैंने ये देखा, मैं एक बार वापस पिछली स्लाइड पर जा रही हूँ बच्चे, ध्यान से समझो। जैसे आपके पास ये था, इसको हम कैसे बना सकते थे कि मार्क्स जो 30 मार्क्स है वो किस किस रोल नंबर के आए हैं, रोल नंबर 1 और रोल नंबर 4। तो मैं यहाँ पर इसको एक और तरह से भी बना सकती थी। मैं इसको कुछ ऐसे भी लिख सकती थी, मार्क्स देन स्टूडेंट्स। अब आपके पास कितने स्टूडेंट्स के 25 मार्क्स आए हैं, चलो 15 लेते हैं। 15 मार्क्स आर ऑब्टेन्ड बाय 1 स्टूडेंट, 25 मार्क्स आर ऑब्टेन्ड बाय 2 स्टूडेंट्स एंड 30 मार्क्स आर ऑब्टेन्ड बाय 2 स्टूडेंट्स। ये आपका डिस्क्रीट फॉर्म है। क्यों? क्योंकि हम एक वैल्यू को एक नंबर दे रहे हैं। जैसे 15 मार्क्स आर ऑब्टेन्ड बाय 1 स्टूडेंट्स एंड देन 25 मार्क्स आर ऑब्टेन्ड बाय 2 स्टूडेंट्स। इसका मतलब हम फ्रिक्वेंसी को क्या कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंस दे रहे हैं। ये आपकी बन जाएगी डिस्क्रीट सीरीज़। चलिए वापस चलें, हम लोग बात कर रहे थे डिस्क्रीट सीरीज़ की। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट सीरीज़। एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टेबल,
that these are income in rupees. 5 rupees number of persons, there are 7 persons who are getting income worth rupees 5. Clear? There are 4 persons who are getting income worth rupees 10. अब आप यहाँ ध्यान दो कि हमने बिल्कुल भी कोई क्लास इंटरवल नहीं लिया हुआ, लेकिन हम फ्रिक्वेंसीज को लेकर चल रहे हैं. ये है आपका पर्टिकुलर नंबर और ये है आपकी फ्रिक्वेंसी. अब थोड़ा सा और हम दे सकते हैं, इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में रखा हुआ है. आपके पास क्वेश्चन में किसी भी ऑर्डर में आए, आपको परेशान नहीं होना. जनरली ये असेंडिंग ऑर्डर में ही होता है, लेकिन किसी भी ऑर्डर में आए आपको उसे कोई परेशानी नहीं है. अब यहाँ पर आपके पास एक कॉन्सेप्ट आ रहा है टैली बार्स का. टैली बार्स आपने अपनी जूनियर क्लासेस में की हुई है. यहाँ पर टैली बार्स जैसे 7 है, हमने क्या किया, पहले 4 लगाए, 1 2 3 4 बार्स लगाए. इसको हम इस तरह से करके 5th बार लगा देते हैं और उसके बाद 2 बार्स और आ गए. आप यहाँ देख रहे हो कि जो मैं लगा रही हूँ, मैंने इस तरह से क्रॉस लगाया, उससे इधर से क्रॉस लिया हुआ है. मैं ले रही हूँ लेफ़्ट टू राइट, उससे राइट टू लेफ़्ट लिया हुआ है. इट्स ओके. लेकिन ज़्यादातर जो है हम ये लेंगे लेफ़्ट टू राइट. ये वाले एज को स्टार्ट करेंगे और इस एज पर आकर हम रुकेंगे. फिर से देखिए 1 2 3 4. इस एज से स्टार्ट करेंगे और इस एज पर हम रुकेंगे. हम किसी भी कंडीशन में ऐसे करके नहीं लगाएंगे, ये गलत हो जाएगा. गॉट इट बेटा? जब आपको टैली बार्स लगाने हैं तो ध्यान रखिए, दिस इज़ द appropriate way of marking tally bars and this is inappropriate way. Got it beta? Now move to the next topic. So this is all about the uh, example of discrete series. Got it beta? Now move to the continuous series. This is continuous series. As we have already discussed that in continuous series the arrangement is made, no doubt, considering the frequency, but there are class intervals और range. जैसे आपके इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है, एग्जाम्पल आ रहा है, दिस इज एज ग्रुप 10 to 20, फ्रिक्वेंसी इज़ 15. जैसे अगर मैं ये बात करना चाहूँ, कोई पर्टिकुलर सर्वे हमने किया है, तो उस सर्वे में हमें ये पता लगा कि जो एज ग्रुप है 10 years to 20 years, उसमें 15 पर्सनस आ रहे हैं और 20 to 30 में 10 आ रहे हैं, 30 to 40 में 13 आ रहे हैं. सो दिस इज़ अबाउट द कॉन्टीन्यूस सीरीज़. कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में हमारे पास क्या होगा, नो डाउट फ्रिक्वेंसी होगी और साथ में हमारे पास होंगे क्लास इंटरवल्स या एक पर्टिकुलर रेंज. व्हाट इज़ द रेंज? 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, so and so. So this is about the continuous series. क्लियर बेटा? लेट मी रिकॉल, आज हमने क्या क्या किया. आज हमने टॉपिक डिस्कस किया है, यस, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. आज हमने स्टडी किया what are variables, what are the types of variables. Then we discuss about the statistical series, the meaning of raw data, then the series. After that we discuss about the conversion of raw data into series, that is the individual series without frequency, then frequency series or series with frequencies. Then these are the examples of individual series. We can arrange the data without frequency in 2 ways, that is according to the serial number and secondly ascending or descending order. Then these are the frequency series. In frequency series there are further 2 types. One is the discrete series, that is no class intervals. Then the frequency distribution, these are with class intervals. Then frequency distribution, फिर इसमें हम थोड़ी सी definitions करेंगे, आपको definition prepare करनी है. Then these are the examples. This is the example of discrete series. No class intervals are there, particular values are there, their respective frequencies are there. Then these are the continuous series in terms of the class intervals or in terms of the range, then the frequency. Clear beta? Now this is your homework. Few questions are there. You are advised to write these questions in your fair notebook. Clear beta? यही क्वेश्चन आपको फेयर नोटबुक में करने हैं. जो एग्जाम्पल आपको कहा जा रहा है, आप अपनी तरफ से एग्जाम्पल दीजिए. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द टेक्स्ट बुक ऑल्सो. क्लियर? सो डियर स्टूडेंट, स्टे होम, स्टे सेफ, डू योर वर्क प्रॉपरली. Goodbye dear students. Have a wonderful